السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احکام تجوید کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ جیسا کہ آج ہم پڑھیں گے جزم کے بارے میں، جزم کی پہچان پڑھیں گے اور جزم کے متعلق کچھ سوال ہیں ان کو بھی جانیں گے انشاءاللہ کہ قرآن کے اندر جزم کی پہچان کیا ہے اور جزم والے حرف کو کیسے پڑھتے ہیں، اور جس حرف کے اوپر جزم آتی ہے اس حرف کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو جزم کے بارے میں آج ہم سیکھیں گے، جزم کی پہچان پڑھیں گے اور جزم کی جوڑواں پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں جزم کی پہچان۔ یہ ہے سا۔ تو جزم کی پہچان کیسے کروائے بچوں کو؟ سا لکھیں، کوئی حرف لکھیں، اسی لیے سا ہے، اور سا کے اوپر جزم کو ڈالیں، ٹھیک ہے۔ جزم کو لکھیں، پھر جزم کی پہچان کروائیں۔ کیسے پہچان کروائیں کہ دیکھو بچوں، یہ سا ہے، سا کے اوپر میں نے دال جیسی چھوٹی سی شکل بنائی، ٹھیک ہے۔ دال لکھیں بچوں، یہ کیا ہے؟ دال ہے، دال جیسی ہے، دال جیسی چھوٹی سی شکل ہے، دال بڑا ہے، دال جیسی شکل ہے لیکن چھوٹی ہے، ٹھیک ہے۔ دال جیسی چھوٹی سی شکل کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے۔ دال جیسی چھوٹی سی شکل کو کہتے ہیں جزم، یہ ہے جزم، ٹھیک ہے۔ جزم کی پہچان میں 5 باتیں ہیں۔ یہ 5 باتیں اگر بچوں کو یاد ہو جائیں گی تو جزم کی پہچان کرنا بہت آسان ہے، اور جزم والے حرف کو کیسے پڑھتے ہیں وہ بھی بچوں کو پتہ چل جائے گا، بہت آسان پہچان ہو جائے گی انشاءاللہ سے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، اس دال جیسی چھوٹی سی شکل کا نام ہے جزم۔ دال جیسی چھوٹی سی شکل کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے۔ اس کو لکھ لیتے ہیں، دال جیسی، پہلی بات دال جیسی چھوٹی سی شکل کا نام ہے جزم، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اس دال جیسی چھوٹی سی شکل کا نام ہے جزم، اس دال جیسی چھوٹی سی شکل کو کہتے ہیں جزم، یہ ہے جزم۔ یہ پہلی بات ہے کہ بچوں کو یاد ہو جائے کہ یہ جزم ہے، یہ بچوں کو یاد ہوگی یہ جزم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بچوں کو پتہ چل جائے کہ اس دال جیسی چھوٹی سی شکل کا نام جزم ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات ہے کہ جزم کہاں ہے؟ بچوں سے پوچھیں، بچوں جزم کہاں ہے؟ تو بچے جو ہے نا خود بخود بتائیں گے کہ جزم سائیں، یہ جزم جو ہے وہ سا کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، سا کے اوپر ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یاد رکھو بچوں، جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، یہ دوسری بات ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات کون سی تھی؟ اس دال جیسی چھوٹی سی شکل کا نام ہے جزم، اور جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات کون سی ہے؟ جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اب تیسری بات کون سی ہے؟ جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ پہلا نام اس کا جزم ہے اور دوسرا اس کا نام سکون ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ یاد کروانی ہے بچوں کو کہ جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو لکھتے ہیں نمبر 3 پر، جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے۔ تیسری بات ہے کہ جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات تیسری بات بچوں کو یاد کروانی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات اس دال جیسی چھوٹی کی شکل کا نام ہے جزم، اور دوسری بات جزم ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، اور تیسری بات جزم کا دوسرا نام سکون بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی بات، ٹھیک ہے، جس حرف کے اوپر جزم سکون آ جائے اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ سا ہے، سا کے اوپر کیا ہے؟ جزم سکون ہے، تو سا کیا ہو گیا؟ سا ساکن ہو گیا، کیوں؟ سا کے اوپر جزم سکون ہے، ٹھیک ہے۔ تو چوتھی بات ہے، جس حرف کے اوپر جزم سکون آ جائے اس حرف کو ساکن حرف کہتے ہیں، یہ ہے چوتھی بات،
जिस हरफ के ऊपर जज़्म सुकून आ जाए उस हरफ को साकिन हरफ कहते हैं। ये चौथी बात है। ये चौथी बात भी बच्चों को खूब याद करवानी है, ठीक है। यानी ये था के ऊपर जज़्म सुकून है तो था साकिन हो गया, क्यों था के ऊपर जज़्म सुकून है, ठीक है। ये दाल है, दाल के ऊपर जज़्म सुकून आ गया तो दाल साकिन हो गया, क्यों, दाल के ऊपर जज़्म सुकून है, ठीक है। ये बा है, बा के ऊपर जज़्म सुकून आ गया तो बा साकिन है, क्यों, बा के ऊपर जज़्म सुकून है, ठीक है। ये जीम है, जीम के ऊपर क्या है, जज़्म सुकून है, तो जीम क्या हो गया, जीम साकिन है, क्यों, जीम के ऊपर जज़्म सुकून है, ठीक है। तो जिस हरफ के ऊपर जज़्म सुकून आ जाए, जज़्म सुकून आ जाए जिस हरफ के ऊपर, कोई भी हरफ हो, उस हरफ को हम साकिन हरफ कहेंगे। ये बात है, चौथी बात है, ये बच्चों को खूब याद करवानी है, ज़हन में बिठानी है, क्योंकि ये जज़्म की पहचान है। ये पहचान बच्चों को याद होगी तो जज़्म वाले हरफ को बच्चे अच्छी तरीके से, सही तरीके से पढ़ सकेंगे, ठीक है। और पांचवी बात ये है कि साकिन हरफ एक मर्तबा पढ़ा जाता है, ठीक है। ये था है, था के ऊपर जज़्म सुकून है तो था क्या है, साकिन है। अब जिस हरफ के ऊपर जज़्म सुकून आ जाए उस हरफ को साकिन हरफ कहते हैं। अब साकिन हरफ एक मर्तबा पढ़ा जाता है, कितनी मर्तबा, एक मर्तबा पढ़ा जाता है। कैसे, अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर। साकिन हरफ एक मर्तबा पढ़ा जाता है अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर, यानी अपने से माक़बल जो मुतहर्रिक हो उससे मिलाकर साकिन हरफ को पढ़ा जाता है, तो ठीक है। तो पांचवी बात ये है कि साकिन हरफ सिर्फ एक मर्तबा पढ़ा जाता है अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से, ठीक है। ये है पांचवी, जिस हरफ के ऊपर जज़्म सुकून आ जाए उस हरफ को साकिन हरफ कहते हैं। अब साकिन हरफ सिर्फ एक मर्तबा पढ़ा जाता है अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि था साकिन है क्योंकि था के ऊपर जज़्म सुकून है, जिस हरफ के ऊपर जज़्म सुकून आ जाए उस हरफ को साकिन हरफ कहते हैं। अब साकिन हरफ एक मर्तबा पढ़ा जाता है अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर, ठीक है। तो ये हमजा है, हमजा के ऊपर हमजा के ऊपर हरकत है, ठीक है। ये हमजा है, हमजा के ऊपर क्या है, हरकत है, बड़ी हरकत है, ज़बर है, ठीक है। तो साकिन हरफ अपने माक़बल का मोहताज होता है, ठीक है। साकिन हरफ को अपने माक़बल यानी माक़बल मुतहर्रिक हरफ से मिलकर पढ़ा जाता है, ठीक है। तो साकिन हरफ को एक मर्तबा पढ़ा जाता है अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर, ठीक है। ये है जज़्म की पहचान, ठीक है। पहली बात कौन सी थी कि इस दाल जैसी छोटी सी शक्ल का नाम है जज़्म। जज़्म हमेशा हरफ के ऊपर होता है, नंबर 2 पर, ठीक है। नंबर 2 पर जज़्म हमेशा हरफ के ऊपर होता है, और नंबर 3 पर है जज़्म का दूसरा नाम सुकून भी है, और नंबर 4 पर है जिस हरफ के ऊपर जज़्म सुकून आ जाए उस हरफ को साकिन हरफ कहा जाता है, और नंबर 5 पर है साकिन हरफ सिर्फ एक मर्तबा पढ़ा जाता है अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से मिलकर। तो ये है जज़्म की पहचान। जज़्म की पहचान में ये 5 बातें हैं, अगर ये 5 बातें बच्चों को याद हो जाती हैं तो बच्चे जो है जज़्म वाले हरफ को सही तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये 5 बातें हैं जज़्म की पहचान। तो ये पहचान थी, अब इसकी जोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमजा है, हमजा मुतहर्रिक है क्योंकि हमजा के ऊपर हरकत है, हमजा के ऊपर हरकत है, बड़ी हरकत है, ज़बर है। और सा क्या है, साकिन है। अब साकिन हरफ को कैसे पढ़ा जाता है, साकिन ही पढ़ा जाता है। कितनी मर्तबा पढ़ा जाता है, एक मर्तबा पढ़ा जाता है। कैसे, अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ से, ठीक है। तो हमजा को हम ता के साथ मिलाएंगे, यानी कि जोड़ रवा पढ़ेंगे। हमजा ता ज़बर अत, ठीक है। अब हमजा को हम ता के साथ मिला रहे हैं, हमजा ता ज़बर, हमजा ता ज़बर। तो ये क्या है, ये इसकी जोड़ है क्योंकि हमजा जो है वो ता के साथ मिल रहा है, हमजा ता ज़बर। अब इसकी रमा क्या है, इसकी रमा है अद, अद, ठीक है। ये इसकी रमा है। इसकी जोड़ क्या है, हमजा ता ज़बर, ये इसकी जोड़ है। इसकी रमा क्या है, अद, अद, ठीक है। तो उसकी जोड़ और रमा दोनों एक साथ होंगी, हमजा ता ज़बर अद, अद,
अज, ठीक है। सा की अदायगी में हम ज़बान का जो यसरा है, ये सामने वाले ऊपर वाले दो दांत है बड़े वाले सनाया उलिया, इनमें लगाएंगे। अज अज अज, ठीक है। सा नरम है, नरम हुरूफ 3 है, ता दाल और वा, ये 3 हुरूफ नरम हुरूफ है। इनको ज़बान का जो इसरा है, सामने वाले ऊपर वाले दो दांत है बड़े वाले, इनके किनारों पे लगाएंगे। फिर ये 3 हुरूफ अदा होते हैं, ता दाल और वा, ठीक है। तो सा की अदायगी हमने ऐसे पढ़नी है। अज, ज़बान का सरा सामने वाले ऊपर वाले दो बड़े वाले दांत है, ये सनाया उलिया के किनारों पे लगाएंगे। अज अज, ठीक है। तो ये ज़बर थी, हमने ज़बर पढ़ी, अब जेर को पढ़ते हैं। ठीक है। अब सा क्या है, साकिन है, सा के ऊपर जज़म सुकून है। साकिन हर्फ सिर्फ एक मर्तबा पढ़ा जाता है, कैसे? अपने से पहले वाले मुतहरिक हर्फ से मिलकर। तो हमजा क्या है, मुतहरिक है, ठीक है। हमजा के ऊपर ज़ेर है, ठीक है। वो मिलाते हैं, हमजा ता ज़ेर, ये क्या है, ये इसकी जोड़ है। हमजा ता ज़ेर, ये इसकी जोड़ है। अब इसकी रवा क्या होगी, इफ इफ इफ, ये इसकी रवा है, ठीक है। हमजा ता ज़ेर, ये इसकी जोड़ है, और इफ 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 इसकी रवा है, ठीक है। अब इसकी जोड़ रवा दोनों एक साथ होंगी, हमजा ता ज़ेर इफ, ठीक है। अब पेश को पढ़ते हैं। ठीक है। ता साकिन है और हमजा मुतहरिक है, हमजा के ऊपर पेश है, हरकत है। हमजा ता पेश, ठीक है। हमजा ता पेश, ये इसकी जोड़ है। अब इसकी रवा क्या होगी, उस, हमजा ता पेश, ये इसकी जोड़ है, और उस इसकी रवा है, उस इसकी रवा है। तो इसकी जोड़ रवा दोनों एक साथ होंगी, हमजा ता पेश उस, ठीक है। हमजा ता पेश उस, ठीक है। तो अज इफ उस, अज इफ उस, और पेश में जो है ना होंठ गोल होते हैं, ठीक है। पेश में, पेश की अदायगी में या वाव की अदायगी में होंठ जो होते हैं वो गोल होते हैं, उस इस तरह, ठीक है। तो ये थी मुख्तसर जोड़ रवा, ठीक है। ये जस्म की पहचान थी और जस्म की जोड़ रवा थी। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ चुकी होंगी, जस्म की पहचान और जस्म की जोड़ रवा, ठीक है। तो इस वीडियो को जो है ना दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि दूसरों को भी ये बातें समझ में आ सके, ठीक है। तो ये आज की हमारी मुख्तसर क्लास थी। इंशाल्लाह अब मिलेंगे दूसरी एक और वीडियो में, तब तक के लिए आपको दुआ में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।